Hello students, good morning. Jai Swaminarayan. All of you, welcome to class 4 in Atmiya Agri School. My name is Prajakta and I am a maths teacher. Now we will start revision of lesson number 4, division and unitary method. So student, what you had learned our last classes, all of you know very well what you had learned. So first we will see what you had learned our last classes, then we will start our today's topic. First we had learned the recall exercise. In this topic we had learned, look at here, 45 divided by 5 equal to 9. This is the 2-digit number divided by 1-digit number. So now look at here, that 45 is called dividend, 5 is called divisor and 9 is called quotient. Now look at in this example 3 is the remainder. This is called remainder. Okay, so that which is the number is divided, this is called dividend, and which is number is divided by the dividend, this number is called divisor, and whatever the answer is getting, this is called quotient, and whatever the getting remain, this is called remainder. Okay, this we had learned. Then after we had learned the property of division. So which property of division? First property of division, suppose we are look at here, this is the relation between the multiplication and division. Now look at here, 7 into 6. Now 7 into 6 is equal to 42. So when we are, whichever the getting is the quotient. Okay, now look at here, 7 into 6 equal to 42. Now this is the, we will get product 42. 42 is divided by 6. 42 divided by 6. So we will get 7. This is the another answer, means another factor, and 42 divided by 7. 42 divided by 7. So when we are divided 42 divided by 7, so we will get 6. So this is the relation between the property and division. Then the second property of division, when we are divided 1 in any numbers, so we will get itself number. Look at here, 6 divided by 1, we will get 6, means this itself number. Then property of 3, when we are divided itself number, so we will get answer is the 1. When we are divided itself number, so we will get answer is the 1. Then property of number 4, when we are divide 0 in any number, so we will get answer is the 0. When we are divide 0 in any number, so we will get answer the 0. So this is the property of division. Then after we had learned the division of 4-digit number by 1-digit number. Then after we had learned the divide by a 2-digit number. In this topic we had learning the estimating quotient. Okay, so this is we had learned in last period, exercise 4.3. Now look at our today's topic, dividend. Now here also same, by using the some estimating method. Now look at here, 4132 by 90. 4132 by 90. So now look at here, divide the 41 divided by 90. Now look at here, 4132 divided by 90. So now look at here, 19 is the 2-digit number, so we will take 2-digit number. So we will taking here 41. Now look at here, we will this solving the question by using the estimating method. फर्स्ट एस्टिमेटिंग द क्वेश्चन बाय राउंडिंग. ओके, फर्स्ट हमें क्या करेंगे, एस्टिमेटिंग राउंडिंग वैल्यू निकालेंगे. यहाँ पे क्या है 41, यहाँ पे क्या है 19 के साथ 41 को डिवाइड करना है, क्योंकि ये 19 क्या है 2-digit नंबर है, तो हम इसमें से 2-digit नंबर लेंगे. सो नाउ लुक एट हियर, 41 और 19, 41 की हम राउंडेड वैल्यू लेंगे और 19 की भी राउंडेड वैल्यू लेंगे. सो 41 की राउंडेड वैल्यू क्या होगी, 40 होगी, और 90 की
90 की राउंडेड वैल्यू कितनी होगी, 19 की राउंडेड वैल्यू क्या होगी, 20 होगी। सो अभी हमने 110 कैंसिल किया है और यहाँ पे 4 डिवाइडेड बाय 2 हो गया, तो इक्वल टू क्या हो गया है, 2 हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, 19 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करके देखेंगे। किसको, 19 के साथ 2 के साथ मल्टीप्लाई करके देखेंगे। तो क्या आ गया है, 38 आ गया है। 38 इज द लेस देन 41। 38 हमारा लेस है 41 से, तो हम इसको ले सकते हैं। और हम ट्राई करेंगे एक बिगर नंबर, मतलब हम क्या करेंगे, 19 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करके देखेंगे। ठीक है, तो 19 को 3 के साथ जब मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आंसर आता है, 57 आता है। सो नाउ लुक एट हियर, 57 इज द ग्रेटर देन 41। 41 से 57 ग्रेटर है, तो हम क्या लेंगे फिर, जो हमारे सेकंड वाले प्लेस पे क्या आता है, 38 आता है, तो हमने वो लिया। 41 माइनस 38, 41 माइनस 38 कितना हो गया, ये 38 कौन से प्लेस पे है, 2 वाले, तो हमने यहाँ पे क्या लिखते हैं, 2 लिख दिया है। 41 माइनस 38, 41 माइनस 38 कितना हो गया है, 41 में से 38 माइनस करते हैं तो कितना बचता है, 3 बचता है। नाउ ब्रिंग आउट 3, अभी ये 3 है, इसको नीचे लेंगे। ठीक है, नाउ लुक एट हियर, bring down the tens digit, divide the tens 19 in the same way. 19 into 1 equal to 90, 33 minus 90 equal to 14। ठीक है, सो हमने क्या किया है, यहाँ पे 33 है और हमें पता है कि हमारा सेकंड वाले प्लेस पे क्या आता है, 38 आता है। तो इसके लिए हमें राउंडेड वैल्यू करने की जरूरत है क्या, नहीं। अगर वो हमारे 41 से बड़ा रहता है तो हम क्या करते, उसको करके देखते। अभी क्या हो गया है, 38 से 19 डिवाइड नहीं होगा तो हम क्या लेंगे, 19 लेंगे। 19 कहाँ पे, 1 प्लेस पे है, तो 33 माइनस 19 कितना हो गया, 14 आ गया। अभी ब्रिंग आउट 2 को ब्रिंग आउट करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ गया है, 142 आ गया, 142। ना 142 को हम क्या करेंगे, 19 के साथ डिवाइड करेंगे। सो नाउ लुक एट हियर, ब्रिंग आउट वंस डिजिट, डिवाइड इन द सेम वे। ठीक है, 19 इंटू 7 इक्वल टू 132। 1 अभी क्या किया है इन्होंने, इसको नीचे लेके फिर क्या किया है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी राउंडेड वैल्यू करके देखेंगे। ठीक है, 140 की राउंडेड वैल्यू क्या होगी, 100 होगी, और 90 की राउंडेड वैल्यू क्या होगी, 20 हो जाएगी। अगर 100 और क्या होगी, 100 और यहाँ पे 20 लेंगे तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अगर हम लुक एट हियर 19 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आता है कि नहीं, चेक करेंगे। दिस इज द टेबल ऑफ 90। 19 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आता है, तो हम क्या करेंगे, नियरेस्ट वैल्यू यहाँ पे फाइंड करेंगे। 19 इंटू 7 इक्वल टू 133, सो 142 माइनस 133 इक्वल टू 9। क्वेश्चन इज द 217 एंड रिमाइंडर इज द 9। फिर हमने क्या किया है, 19 को मल्टीप्लाई किया है किसके साथ, 7 के साथ, तो हमें क्या आता है, 133 आता है, और उससे माइनस करेंगे तो 0 आता है। ठीक है, सो ये 19 है तो हम 19 का टेबल लिख के कर सकते हैं, लेकिन 20 के ऊपर है और बहुत बड़ा नंबर है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 83 है, तो 83 का टेबल हमें याद रह सकता है क्या, नहीं। टेबल लिख सकते हैं हम, लेकिन क्या कर सकते हैं, याद रहेगा क्या, नहीं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, एस्टिमेटिंग वैल्यू निकालते हैं और फिर उसको करके देखते हैं। सो नाउ लुक एट हियर ऑल ऑफ यू, एक्सरसाइज 4.4, क्वेश्चन नंबर A. This is already we had done our last class, so then also we will see one time here. Now look at here, 18, okay, and now look at here 425 425 को डिवाइड करेंगे 18 के साथ। सो आपको 18 का टेबल आता है सबको। आई होप ऑल ऑफ यू नाइसली नो टेबल्स ऑफ 18। नाउ लुक एट हियर, टेबल ऑफ 18। सो व्हाट इज द वैल्यू, 42।
Now look at here 18th table. In the 18th table 42 is looking no. What is the nearest value? 36. Okay. 54 also nearest value, but 54 is the greater than 42. So we'll take 36. 36 is the place of 2. So we'll write here 2 and यहाँ पे 42 minus 36 इक्वल टू कितना हो गया? यहाँ पे बच गया 6 और यहाँ पे क्या आ गया? 65 हो गया. ठीक है. नाउ ब्रिंग आउट 5 को ब्रिंग आउट किया तो क्या हो गया? 65 हो गया. नाउ लुक एट हियर 18 टेबल. 18 के टेबल में 65 दिख रही क्या? नहीं. 18 के टेबल में 65 दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है. सो व्हाट इज द नियरेस्ट वैल्यू? दिस इज द 18 टेबल. 18 के टेबल पे आपको 65 दिख रहा है क्या? नहीं. व्हाट इज द नियरेस्ट वैल्यू? 54. 54 इज द प्लेस ऑफ 3. 54 है. 54 कौन से प्लेस पे है? 54 ये 3 वाले प्लेस पे. तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 3 लिख देंगे और यहाँ पे क्या करेंगे हम? अभी 65 यहाँ पे मैंने शायद 64 लिख दिया था और यहाँ पे 4 लिख दिया था. यहाँ पे आएगा 54 आ जाएगा. ठीक है. 65 में से हम 54 को माइनस करेंगे तो 5 minus 1 1 6 minus 5 1. सो हमारा रिमाइंडर कितना आ गया है? 11 आ गया है और क्वेश्चन आ गया है 23. मे बी आई रोट हियर 64. ओके. सो स्टूडेंट दिस करेक्ट इन यूर टेक्स्ट बुक. सो दिस इज करेक्ट इन यूर टेक्स्ट बुक. ठीक है स्टूडेंट. यहाँ बेबी माई मिस्टेक लिया, मैंने यहाँ से कुछ गलत कर दिया था तो आपके यहाँ पे गलत होगा. यहाँ पे 64 होगा और तो ये क्या करो आप कट करो 64 को. यहाँ पे 54 लिख दो. 65 माइनस 54 कितना हो गया? 11 हो गया. और यहाँ हमारा क्वेश्चन कितना हो गया? क्वेश्चन इक्वल टू 23 आएगा और रिमाइंडर इक्वल टू 11 आ जाएगा. ठीक है. सो दिस इज एग्जाम्पल नंबर 1. नाउ लुक एट हियर एग्जाम्पल नंबर 2. यहाँ पे क्या है? 5030 divided by 45. 5030 divided by 45. Now look at here. 45 is the 2-digit number. So यहाँ से भी हम 2-digit number लेंगे. Now look at here 50. ठीक है. 50 क्या है? 45 के नियरेस्ट वैल्यू है. नियरेस्ट वैल्यू है तो हम क्या करेंगे? 50 माइनस 45 करेंगे. 50 माइनस 45 करेंगे तो 50 माइनस 45 क्या होता है? 5 होता है. नाउ ब्रिंग आउट 3. नाउ 53. 45 2 सा क्या होता है? 90 होता है. ठीक है. सो 53 19 से क्या है? छोटा है. 90 ये क्या है? बड़ा है 53 से. तो हम फिर यहाँ से क्या लेंगे? हम 53 को ही 53 को मतलब हम क्या करेंगे? 53 नहीं होता है तो नियरेस्ट वैल्यू क्या है उसकी? 45 है. तो हम 53 में से 45 माइनस करेंगे. यहाँ पे 1 लिख दिया. 53 माइनस 45 कितना हो गया? 53 माइनस 45 कितना हो गया है हमारा? 8 बच गया है. ठीक है. नाउ ब्रिंग आउट 0 80. नाउ 45 2 सा क्या होता है? 90 होता है. क्या होता है? 90 होता है. सो नाउ 90 इज द ग्रेटर देन 80. सो हम यहाँ फिर से क्या लेंगे? 45 लेंगे. तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? 1 लिख देंगे. 80 माइनस 45 कितना होता है? 35. तो हमारा क्वेश्चन कितना आ गया? 111 एंड रिमाइंडर कितना हो गया? 35 हो गया. ओके. सो दिस इज द एग्जाम्पल नंबर 2. नाउ लुक एट हियर एग्जाम्पल नंबर 3. 47. ठीक है. और यहाँ पे क्या है? 3455. 3455 को डिवाइड करेंगे 47 के साथ. सो नाउ लुक एट हियर 47 इज द 2-digit नंबर. सो विल टेक 34. बट नाउ लुक एट हियर 34 इज द लेस देन 47. 34 हमारा 47 से छोटा है तो हम कौन सी वैल्यू लेंगे? यहाँ पे 345 वैल्यू लेंगे. ठीक है. नाउ लुक एट हियर यहाँ पे ऑलरेडी 7 लिखा हुआ है हमारे आंसर में. तो हम क्या करेंगे? 47 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. 7 के साथ 47 को हम 7 के साथ मल्टीप्लाई करके लिखेंगे क्योंकि हमारा क्वेश्चन में ऑलरेडी क्या लिखा है? यहाँ पे 7 लिखा है. तो 47 इंटू 7 कितना होता है? 7 इंटू 7 49. 9 is writing here and 4 is the carry.
नाउ 7 into 4, 7 into 4 28, 28 plus 4 32, तो हमारा कितना आएगा 329। 329 हम अभी सब्ट्रैक्ट करेंगे 345 में से, तो कितना आएगा 16 आता है। ठीक है, 16 आ गया। अभी ये ब्रिंग आउट 5 को नीचे लेंगे, अभी क्या आ गया 165 आ गया। तो हमें क्या करना है, इसकी ऑलरेडी लिखा है 144 ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है। सो 141 हमारे 47 के टेबल में कहाँ आएगा। ठीक है, तो लास्ट का नंबर क्या है 1 है। तो 7 को कौन से नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट वाला नंबर क्या आएगा 1 आएगा। तो हम क्या करेंगे 47 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 7 3 का क्या होता है 21 होता है। तो यहाँ पे क्या आ गया 1 आ गया लास्ट में, और हमारा 2 कैरी हो गया है। 7 into 3 कितना होता है 12 होता है, और 12 plus 2 कितना हो गया 41। तो आ गया हमारा 141। यहाँ पे लास्ट में क्या नंबर दिया है उन्होंने 1 नंबर दिया है। तो हम 7 को कौन से नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद लास्ट में 1 आएगा। 7 3 का 21 होता है, तो यहाँ पे 1 आ गया, तो हमने यहाँ पे 3 लिख दिया है। सो 165 माइनस 141 कितना होता है 24 होता है। तो हमारा क्वेश्चन कितना आ गया है, क्वेश्चन 73 आ गया है, और रिमाइंडर इक्वल टू 24। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर ए। नाउ लुक एट हियर क्वेश्चन नंबर बी। फाइंड द क्वेश्चन एंड द रिमाइंडर। क्वेश्चन फाइंड करना है और रिमाइंडर फाइंड करना है। ठीक है, सो आई विल एक्सप्लेन हियर सम एग्जाम्पल। ओके, यहाँ पे कुछ 2 डिजिट नंबर है और कुछ 3 डिजिट नंबर से। फर्स्ट हम क्या करेंगे, ये वाला एग्जाम्पल क्या सॉल्व करेंगे। 93 डिवाइडेड बाय 11, 93 डिवाइडेड बाय 11। ठीक है, नाउ लुक एट हियर 93। सो ऑल ऑफ यू नो 11 का टेबल सबको आता है। नाउ लुक एट हियर, दिस इज द टेबल ऑफ 11। सो इन लुक एट हियर, what is the nearest value 88 and 91, 88 and 91, but 99 is the 88 and 99 is the greater than 91, so we'll take 88 is the place of 8. so हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 8 लिख देंगे, और यहाँ पे 88 लिख देंगे। ठीक है, नाउ 93 माइनस 8, 93 माइनस 8 कितना हो गया 30 माइनस 5 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा 5। इन द एग्जाम्पल नंबर व्हाट इज द क्वेश्चन गेटिंग, इज क्वेश्चन इज गेटिंग 8 एंड रिमाइंडर इज द 5। ठीक है, क्वेश्चन कितना मिल गया हमारा 8 मिल गया है, और हमारा रिमाइंडर कितना हो गया 5 हो गया। 93 में से 88 को माइनस किया तो 5 बच गया। नाउ लुक एट हियर एग्जाम्पल नंबर 2। 84 डिवाइडेड बाय 28, 84 डिवाइडेड बाय 28। नाउ 28 का टेबल आता है क्या, नहीं आता है। तो हम क्या करेंगे, इसके पहले बाय यूजिंग द एस्टिमेटिंग मेथड, हम क्या करेंगे एस्टिमेटिंग मेथड यूज करेंगे। ठीक है, 84 का राउंडेड वैल्यू कितना हो गया 80 हो जाएगा। ठीक है, और हमारा 28 है, 28 की राउंडेड वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 हो जाएंगी। अभी ये 0 कैंसिल हो गया, अभी 3 डिवाइडेड बाय 8 करेंगे, 3 डिवाइडेड बाय 8 करेंगे। सो लुक एट हियर 8 इज प्रेजेंट इन द 3 टेबल्स। नो व्हाट इज द नियरेस्ट वैल्यू 6 इज द प्लेस ऑफ 2। सो क्या आ गया हमारा 2 आ गया है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे 28 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करके देखेंगे। ठीक है, 8 into 2 क्या होता है 16 एंड 1 इज कैरी, 2 into 2 4 and 5 56 आ गया। और एक नंबर हम लेंगे। ठीक है, 28 को हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करके देखेंगे, तो क्या होता है 8 3 सा कितना होता है 24 होता है। सो 4 यहाँ पे लिखेंगे, 2 कैरी करेंगे, 2 into 3 6 plus 2 8, हमारा कितना आ गया है 84 आ गया। मतलब 28 के टेबल में 84 कौन से प्लेस पे है 3 वाले प्लेस पे, तो ये कितना आ गया है 84 माइनस 84 0। तो हमारा क्वेश्चन कितना मिल गया है 3 मिल गया है, और रिमाइंडर हमारा कितना मिल गया है 0 मिल गया है। सो दिस इज एग्जाम्पल नंबर 2।
नाउ लुक एट हियर एग्जाम्पल नंबर 3. एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है हमारा 41 एंड 92. 92 डिवाइडेड बाय 41. अभी हमारा 41 का हमें टेबल आता है क्या, नहीं आते, तो हम इसमें भी क्या करेंगे, राउंडेड वैल्यू लेके देखेंगे. 41 की राउंडेड वैल्यू कितनी होगी, 40 होगी, और 90 की राउंडेड वैल्यू क्या होगी, 92 की राउंडेड वैल्यू क्या होगी, 90. ठीक है. सो नाउ 0 0 इज कैंसल, 4 डिवाइडेड बाय 9 करेंगे. सो नाउ 9 is present in the 4 place. No. What is the nearest value? 8. तो यहाँ पे क्या होगा, 9 minus 1 कितना हो गया, 8. सो हम क्या करेंगे, 41 है उसको हम किसके साथ मल्टीप्लाई करके देखेंगे, 2 के साथ, क्योंकि हमारा यहाँ पे 2 आ गया. 1 इंटू 2 2 एंड 4 इंटू 2 8. कितना आ गया है, 82 आ गया. अभी और एक वैल्यू लेंगे, 41 को हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करके देखेंगे. 1 इंटू 3 3 एंड 4 इंटू 3 12. कितना हो गया है, 12 हो गया है. तो यहाँ पे कितना हो गया है, 123, और यहाँ पे 82. तो 82 क्या है, 92 से छोटा है, तो हम क्या लेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे और यहाँ पे 82 लिखेंगे. 92 माइनस 82 कितना हो गया है, 10 हो गया. तो हमारा क्वेश्चन कितना हो गया है, 2, और रिमाइंडर हमारा कितना है, 10 है. सो दिस इज द एग्जाम्पल नंबर 3. नाउ एग्जाम्पल नंबर 4 इज द लाइक दैट सेम. नाउ लुक एट हियर एग्जाम्पल नंबर 5. एग्जाम्पल नंबर 5 व्हाट, 332 डिवाइडेड बाय 11. 300. एग्जाम्पल नंबर 4, 332 डिवाइडेड बाय 11. ठीक है. नाउ लुक एट हियर 11 इज द 2 digit number, so we will take 2 digit number. 33 is present in the 11 table. Yes, 33 is present in the 11 table in the place of 3, so we will write 33. 33 minus 33 0. Now bring down 2 is the less than 11, so यहाँ पे हम 0 लिख देंगे, और यहाँ पे 0 माइनस 0, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2. तो हमारा क्वेश्चन क्या आ गया है, 30, और हमारा रिमाइंडर कितना आ गया है, रिमाइंडर हमारा 2 आ गया है. ठीक है. सो दिस इज एग्जाम्पल नंबर 4. नाउ लुक एट हियर एग्जाम्पल नंबर, सो दिस इज एग्जाम्पल नंबर 6 इज द 18. सो 18 का टेबल आता है, तो आप ये सॉल्व करके देख सकते हो. नाउ लुक एट हियर एग्जाम्पल नंबर 7. 405 डिवाइडेड बाय 21. 405 डिवाइडेड बाय 21. ठीक है. 405 को हम 21 के साथ डिवाइड करके देखेंगे. नाउ लुक एट हियर 405 डिवाइडेड बाय 21. सो हमें 21 का टेबल आता है क्या, नहीं होता है, तो हम क्या करेंगे, राउंडेड वैल्यू लेंगे. 21 है और 40 है, तो हम क्या करेंगे, 40 ऑलरेडी राउंडेड वैल्यू है, तो हमारा 20 है, उसको राउंडेड वैल्यू 2 आ जाएगा, 20 आ जाएगा, और यहाँ पे 40 आ जाएगा. 2 कैंसिल हो गया, 2 डिवाइडेड बाय 4 आ गया. 4 ये 2 के टेबल में 2 वाले प्लेस पे आता है, तो हम क्या करेंगे, 21 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करके देखेंगे. 2 इंटू 1 कितना हो गया, 2 इंटू 2 42. नाउ 42 हमारा 40 से बड़ा है, तो हम क्या लेंगे, 21 लेंगे. तो 21 इज द प्लेस ऑफ 1, सो विल राइट हियर 21. ठीक है. अभी 40 माइनस 21 कितना हो गया, यहाँ पे हम 10 लिखेंगे, और यहाँ पे 3 लिख देंगे. 10 माइनस 1 कितना हो गया, 9. 3 माइनस 2 1, यहाँ पे हो गया 19. ये अभी 21 से क्या है, बट छोटा है, तो हम क्या करेंगे, 5 ब्रिंग आउट करेंगे. अभी कितना हो गया, 195 हो गया. अभी 195 21 के साथ कौन से प्लेस पे आता है, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए राउंडेड वैल्यू फिर से निकालेंगे. 195 के राउंडेड वैल्यू कितनी होगी, 200 होगी. ठीक है. और इसकी 21 की राउंडेड वैल्यू 20 हो गई. तो यहाँ पे क्या हो गया, 20 डिवाइडेड बाय 2 हो गया. तो 2 के प्लेस में 20 10 वाले प्लेस पे होता है. लेकिन अगर हम 21 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना आता है, 110 आता है. तो ये क्या है, 110 195 से बड़ा है, तो हम क्या करेंगे,
21 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करके देखेंगे, किसके साथ, 9 के साथ। तो नाउ लुक एट हियर, 21 into 9, so 1 into 9 9 and 2 into 9 18, 2 into 9 कितना होता है, 18 होता है। तो हमारा कितना आ गया, 189। नाउ 189 इज द स्मॉल देन 195, तो यहाँ पे हम 9 लिख देंगे और यहाँ पे लिख देंगे 189 लिख देंगे, ठीक है। नाउ 5 इज द ग्रेटर देन 9, सो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 8 लिख देंगे और यहाँ पे 15 में से 9 गया तो कितना बच गया है, 15 में से 9 गया तो 6 बच गया और यहाँ पे 6 हो गया और 8 माइनस 8 0, 1 माइनस 1 0। तो हमारा क्वेश्चन कितना आ गया, 19 और हमारा रिमाइंडर कितना हो गया, 6 हो गया। सो दिस इज एग्जाम्पल नंबर 6, okay, 7, sorry, not 6, 7. Now look at here some again example, 24 that also like that same, 23 ये भी। अभी हम एग्जाम्पल नंबर कौन सा, 11 वाला सॉल्व करेंगे। वहाँ पे क्या है, 4 डिजिट नंबर है और ये 38 है। सो नाउ लुक एट है 6792, 6792 डिवाइडेड बाय 38, कौन सा नंबर है हमारा, 6792 डिवाइडेड बाय 38 के साथ डिवाइड करके देखेंगे, ठीक है। 67 लेंगे, 38 क्योंकि 2 डिजिट नंबर है, तो हम क्या करेंगे, अभी इसका भी राउंडेड वैल्यू निकालेंगे क्योंकि 38 का हमें टेबल आता है क्या, नहीं। 38 की राउंडेड वैल्यू कितनी होगी, 40 होगी और हमारी 67 है उसकी राउंडेड वैल्यू कितनी होगी, 67 की राउंडेड वैल्यू कितनी होगी, 70 होगी, ठीक है। अभी 0 0 कैंसिल हो गया, 4 डिवाइडेड बाय 7 करेंगे। अगर 7 के साथ 4 को डिवाइड करेंगे तो 7 आता है क्या 4 के टेबल में, नहीं 8 आता है, लेकिन 8 कौन से प्लेस पे आता है, 2 वाले। तो यहाँ पे अगर 2 लिखेंगे तो ये होगा क्या, नहीं, यहाँ पे 1 लिखेंगे और यहाँ पे 4 लिखेंगे, रिमाइंडर कितना बच गया, 3 हो गया। तो हमें 38 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 38 करेंगे और 38 को हम 2 के साथ भी मल्टीप्लाई करके देखेंगे। 8 इंटू 2 16, 1 इज द कैरी, 3 इंटू 2 6, 6 प्लस 1 7, 76 आ गया। 76 क्या है हमारे 67 से बड़ा है, तो हम क्या लेंगे, हमारा 38 कौन से प्लेस पे है, 1 वाले प्लेस पे। 17 माइनस 8 कितना हो गया, 9 हो गया और यहाँ से 1 कैरी किया तो यहाँ पे 5 हो गया, 5 माइनस 3 कितना हो गया, 2 हो गया और नाउ ब्रिंग डाउन 9, ठीक है। अभी के कौन सी वैल्यू हो गई, 299, ठीक है। 29 ये छोटा था इसलिए 299 हो गया। तो अभी 299 38 में कहाँ पे आता है, इसके लिए हमें फिर से यहाँ पे राउंडेड वैल्यू करनी पड़ेगी। 38 की राउंडेड वैल्यू कितनी होगी, 40 होगी और 299 की राउंडेड वैल्यू कितनी होगी, 300 होगी। 0 0 कैंसिल हो गया। नाउ 4 डिवाइडेड बाय 30 करेंगे, ठीक है। सो व्हाट इज द नियरेस्ट वैल्यू, 4 के टेबल में व्हाट इज द नियरेस्ट वैल्यू, 28 प्लेस ऑफ 7, तो क्या हो गया 28। अभी 2 7 आ गया, तभी 38 को हम 7 के साथ मल्टीप्लाई करके देख लेंगे कि इसकी नियरेस्ट वैल्यू आती है क्या, ठीक है। सो 7 इंटू 8 कितना होता है, 56, तो यहाँ पे 6 लिख देंगे और यहाँ पे 5। 7 इंटू 3 21, 7 इंटू 3 21, 21 प्लस 6 21 प्लस 5 कितना हो गया, 26 हो गया। कितना आ गया, 266 आ गया। फिर 38 को फिर 8 के साथ भी मल्टीप्लाई कर देखेंगे। 8 इंटू 8 64, सो 4 यहाँ लिख दिया, 6 हमने कैरी किया है। 8 इंटू 3 कितना हो गया, 24 प्लस 6 कितना होता है, 30 होता है। सो हमारा 304 हो गया। 304 ये बड़ा है तो हम क्या लेंगे, यहाँ पे 7 लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 266 लिखेंगे। 9 माइनस 6 3, 9 माइनस 6 3, 2 माइनस 2 0। नाउ हम ब्रिंग आउट करेंगे 2 को। सो नाउ लुक एट हियर 333 है। अभी यहाँ पे क्या है,
4 है, ये 8 वाले प्लेस पे है। नाउ 38 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करके देखेंगे, क्योंकि 304 8 के प्लेस पे है। सो 8 इंटू 9 कितना होता है, 72 होता है। तो 2 यहाँ पे देखेंगे, 7 हमारा कैरी लेंगे, ठीक है। 9 इंटू 3 कितना होता है, 9 इंटू 3 27, 27 प्लस 7 कितना हो गया है, 27 प्लस 7 कितना होता है, 34 होता है। तो ये 34 बड़ा है, ठीक है। 27 हाँ 34 होता है, 34 ये बड़ा है, तो हम क्या लेंगे, 8 लेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे लिख देंगे 304 लिख देंगे। नाउ 2 ये छोटा है, तो 12 माइनस 4 8 होगा, यहाँ पे 2 होगा और यहाँ 0। तो हमारा क्वेश्चन कितना आ गया, 178, और हमारा रिमाइंडर कितना आ गया, 28। सो दिस इज द एग्जाम्पल फ्रॉम exercise 4.4 question number B. Question number C we will see in our next period. I hope all of you nicely understood. Thank you and have a nice day.